So wishing you good morning again. And as I told you that we are going to discuss the last or the second last reading for understanding story, that is Sushi. Sushi हम लोग discuss कर चुके थे and we were about to do the question answer. So your first question was, which is the most famous Japanese food? Those who have not written, they will write. जो लोग नहीं लिखे, अर्नब कश्यप, आदित्य कश्यप के नाम से तुम्हारी एंट्री कैसे हो गई? अर्नब कश्यप है now become आदित्य कश्यप. हाँ, और हंस भी रहा है, हंस भी रहा है. So your first answer of this will be, sushi is the most famous Japanese food. The question is, which is the most famous Japanese food? Write down the answer. Most famous Japanese food. Sushi is the most famous Japanese food. Sushi is the most famous Japanese food. Anidya, unmute कर लो अपने आप को. You raised your hand. You want to say something, Anidya? You raised your hand. You want to say something? Huh? The second one, what are the basic ingredients required for preparing sushi? This was number one. This was number two. Raw fish, rice, and vinegar. Vinegar are basic ingredients. Basic ingredients. Ingredients for preparing sushi. That's number two. Preparing sushi. What is number C? C, the sushi chef have to complete a training period of, I hope everyone is writing. I hope everyone is writing. Nobody is wasting their time. So many images have come. I don't know why. पे जो अभी कितने सारे इमेजेस आ गए, अब मत करो. Now second one, number C. Yeah. Now what is on number C? Number 6, we have to, the sushi chef have to complete a training period of
5 years. 5 years. Yes, ma'am. 5 years. Correct. Now, choose the word closest to the meaning. One second. Closest is the meaning to word given in bold. Sushi is combination, mixture. The correct word will be mixture. mixture, mixture. Now, number B. Somebody is continuously messaging me. Beta, that's it, ho gaya. I'm not having time to look out your messages. We'll do it after the class. So now the second one is sushi originated in Thailand, Laos, and North Borneo was developed. Correct answer will be was developed. Suryansh Sinha, you raised your hand. You want to say something, Suryansh? You want to say? Suryansh, you want to say something? आंसर देने के लिए 100 Okay, beta. Okay. Okay, Ayush Kumar, raised your hand. Yes, ma'am. Why? What happened? मैम आपकी आवाज यस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. थोड़ा अलग होके बैठो, बाकी बच्चों को आ रही हो तो तुम्हें भी आएगी. That means some problems, network problems are there in your area. तो आगे पीछे किसी बाहर जाके देखो, रूम में किसी दूसरी जगह पे आवाज आनी शुरू हो जाएगी. Yes, sorry Kumar, sorry yourself. Sorry Kumar, sorry. Ma'am, which page number? Sweetheart, open the chapter reading for understanding section में sushi निकालो, ठीक है? I can't. Okay, let me see if I could tell you the page number. Let me see first. 120 and 120. Yes, it's 21. 121. Sorry, yeah? 121. We have right now done page number 120. Right now we are doing 121. So the last one, the technique soon traveled to Japan. Method. Correct word will be method. Now, say whether the following statements are true or false. Sushi was developed in 500 BC. Anyone wants to answer? किसी को answer देना है, whether it is true or a false statement, they can raise their hand. Raise their hand. Aniket Raj, 4C, unmuted. Aniket Raj. Ma'am, side please. Ma'am, side please. What happened? I'm asking something. You are telling me it's to side, please. Why? मैं कुछ पूछी ना तुमसे. कहाँ था तुम? जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो तुमको साइड प्लीज. जब इतनी देर से लिख के ब्लैंक छोड़ा हुआ था तभी क्या करा था? जस्ट फर्स्ट आंसर देन आई विल गिव यू द साइड. मैं साइड दे दूंगी पर पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो. अनिकेत, आंसर मी फर्स्ट. ओके, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन अगेन. ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर मुझे बताओ. Sushi was developed in 500 BC. Is it a true statement or a false statement? Ma'am. Let him answer first. He was not watching. Na? That's why I'm asking. He was looking here and there. Now I'm asking him. He looked back. Aniket, what is the answer? अब वो चैप्टर पढ़ रहा है. Okay, Nandini, you want to answer? Nandini, 4A. Yes, ma'am. What will be the Yes, answer? ma'am. Whether it is a true statement or false statement? Ma'am, true. Correct. So Ma'am, it's true statement. yes, it is a true statement. So write down that true. Aniket, हम बोर्ड के पास से हट रहे हैं. We are having 2 minutes. Write down the answer fastly as much as you can. Now, students, the second statement is sushi is the national dish of Japan. Is it a true statement or a false statement?
Who wants to give me the answer? Who wants to give the answer? Nikita, you want to answer? Nikita, if you want to answer, only raise your hand from the screen. Nikita, unmute yourself. Unmute yourself, beta. Yes, ma'am. What is the answer? True. Okay, true. Correct. Okay, now last statement. It is a true statement. Now the last statement. Who will answer? Ayush Kumar. Ayush Kumar. Unmute करो अपने आप को. Ayush. Yes, ma'am, it is false. What is the answer? A person who cooks food False. is a pilot. A person. Then Ma'am, it will be a what is it? A person who cooks food is a pilot, or what is he? Ma'am, You have to tell me the name. ma'am, a person who cooks food is a chef. शेफ नहीं बेटा, उसको शेफ बोलते हैं, है ना? So yes, a person who cooks food is a pilot. It is a false statement. Sakshi, don't do that. So it is write down there false, and the correct answer will be chef. जो खाना बनाता है उसको हम लोग शेफ बोलते हैं. ठीक है? I think in this way ये हमारा ये स्टोरी भी खत्म हो गया. And last story. Ma'am, I have one problem. What? Ma'am, I have one problem. मुझे आवाज नहीं आ रही है. आप जहां जो भी बोल रहे हो बहुत स्लो बोल रहे हो. आई कांट गेट द वॉइस. राइट नाउ नेशनल एंथम होने वाला है. राइट नाउ नेशनल एंथम होगा. साक्षी, नेशनल एंथम के बाद आपसे बात करूंगी. The last nest. The last reading for understanding is a lark nest. ये एक बहुत प्यारी सी कहानी है. I think इससे कोई related questions अगर होंगे तो लोग आप खुद से ही कर लोगे. बहुत आसान है. कहानी ये है, it is a story of a bird, है ना, जो एक खेत में अरे कुमार सोनी, मैं आपको म्यूट कर लूं. मैम, आपकी आवाज रिपीट हो रही है. I know. अब नहीं होगी. So this is the story of a bird who is having his kids, है ना, उसके kids हैं. उसने baby chicks है या क्या है exactly तो मुझे याद नहीं आ रहा. But let me post. This is a story of a lark nest. Once a lark made her nest in the middle of a cornfield. मक्के की खेत में उसने एक घोंसला बनाया. The harvest was ready to मतलब काटना. जो फसल थी वो काटने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, है ना. जो का फसल था वो पूरी तरह से रेडी था. It was about to reap. She used to leave her young ones and go in search of food. उसी खेत में इस लाख ने अपना घोंसला बनाया था और रोज अपने बच्चों को उस घोंसले में छोड़ के ये खाने की खोज में. रौनित रंजन, चेहरा बनाओगे तो क्लास से बाहर जाओगे. ठीक है. आरोही, sit down properly.
Arohi, sit down. Arohi, sit down. Now, that bird used to go every day, अपने बच्चों को छोड़ती थी और चली जाती थी. एक दिन जब ये वापस आई तो उसके बच्चों ने उसे बताया कि कुछ लोग आए थे फार्मर के साथ जिसका वो कॉर्नफील्ड है और वो फसल काटने की बात कर रहे थे. तो क्या हुआ? See, but she was always worried. If sometimes happen to my young ones while I am away, I will be doomed. Children, you should be careful while I am away. Never wander off. मतलब इधर उधर जाने से अपने बच्चों को मना कर रही थी कि कभी ऐसा हो कि मेरे ना रहे, बिकॉज बच्चे छोटे थे, they were not able to fly. तो उनको वो समझा के जा रही थी कि आप थोड़े से केयरफुल हो जाओ, कभी ऐसा कुछ हो तो you have to be in a very alert position, है ना? Aditi, you raised your hand. Yes, Aditi. Ma'am, what is the meaning of doom? अरे ठीक से बोलो अदिति. What is the meaning of doomed? तुम दुखी है ना, disappointed, दुखी. Yes, Sakshi, जोर से बोलो, जोर से बोलो. Is it okay, Aditi? Got it the meaning? साक्षी, साक्षी जोर से बोलो. बच्चों की आवाज क्यों नहीं क्लियर है? मैम, आपको विनेगर के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या किसके बाद? विनेगर. विनेगर के बाद आर. विनेगर के बाद क्या? आर बेसिक. मैम, हाँ बोलो बच्चों बोलो. मैम A1 के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सब है वेरी सिंपल. आप खुद से भी कर सकते हो ना. इट्स वेरी सिंपल. इतनी छोटी छोटी कहानियां हैं, इसको पढ़ना है, तुरंत समझना है और उसी में आंसर्स है. आराध्या वर्मा हाथ उठा के बैठी है. तुम लोग टेंस कैसे पढ़ोगे? यही करती रहूंगी रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. आराध्या वर्मा बोलो जल्दी बेटा. आराध्या म्यूट किया है तुमको. मैम वो बर्ड वाला किस पेज नंबर में मैम? तुम लोग कहाँ रहते हो आराध्या? प्रैक्टिस बुक तुम लोग के पास है, खोलो. पेज नंबर 122. 122. All are having your books in your Page hand. number 122. Just turn the pages. We are doing reading for understanding section. Turn the page. That's it. Get the chapter. For this, you're raising your hand. You're disturbing the class. नो मैम, इधर देखिए ना मैम, मेरे में नहीं है मैम. ये रहा पेज नंबर 121. मैम 122 तो खाली है मैम मेरे में. कोई बात नहीं, तो ठीक है. वो हो सकता है मिस प्रिंटिंग नहीं हुआ होगा उस पेज का. तो मैं आपको फोटो क्लिक करके या somebody will share the page. उस पेज को शेयर करिए. It's Ma'am, I okay. will share. Okay, share it with your friends. ढूंढ रही थी. Have the help of your friends. है ना, आप लोग फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं बेटा. ठीक है. आई नो कि सिचुएशन कुछ एडवर्स है. यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स. आप स्पेशली आप न्यू बच्चों के लिए है ना. बट अब पूरे सेशन तो आप लोग एक दूसरे से ऑनलाइन ही सही, वर्चुअली ही सही, एक दूसरे को देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो हम लोग हेल्प ले सकते हैं एक दूसरे की, है ना. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अभी मेरी फ्रेंड है इस क्लास में. अब म्यूट कर ले बेटा, आगे चले हम. ठीक है. But she was always, the bird was always worried क्योंकि उसको पता था कि उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं. They are not able to fly, है ना. कभी इसके एब्सेंट में कुछ हुआ तो ये क्या करेगी, है ना. तो she always make her children alert and listen carefully whatever the farmers. वो farmers बोलती थी बच्चों को कि जब भी किसान आए वो क्या बात कर रहा है उसको ध्यान से सुनना. One day when the lark returned home, mother, the kids or the young ones of that particular bird used to tell her that आज क्या हुआ था. आज उन्होंने किसान को अपनी पत्नी से बात करते सुना. He said that he was going to neighbors to request them for helping in the cutting the corn. उसने कहा कि अब मैं आपके मैंने कि हम लोगों ने किसान को अपनी पत्नी से ये बात करते सुना कि वो अपने पड़ोसी को बोलने जाएगा, रिक्वेस्ट करने जाएगा, क्योंकि वो जो फसल थी वो पूरी तरह से तैयार थी, है ना. सो आई विल गो टू माय नेबर्स टू रिक्वेस्ट देम दैट दे शुड हेल्प हिम
in cutting that harvest. उसके फसल को काटने के लिए उसको मदद करे. Mother, now we should make our nest somewhere else. No, my children. Bird was relaxed. ये बच्चों को थोड़ा अटपटा भी लगा कि ऐसा क्यों, माँ क्यों इतना निश्चिंत है जब किसान फसल काटने की बात कर रहा है, फिर भी मेरी जो हमारी माँ है, she is not worried at all. Why? So what is the reason of that? तो इसके बाद देख, पहले दिन किसान ने बात की कि वो नेबर से मदद मारेगा. बर्ड वॉज रिलैक्स कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? मदर, फिर दूसरे दिन फिर बच्चों ने अपनी माँ को बताया, मदर, टुडे वी हर्ड द फार्मर सेड टू हिज वाइफ दैट द नेबर हैड रिफ्यूज्ड टू हेल्प बट ही होप्ड दैट हिज कजन वुड कम टू हेल्प हिम. उसके भाई उसकी मदद करने जरूर आएंगे. Again the lark said, don't worry my kid, but listen carefully to what he says. Somebody What to say tomorrow? मैम साक्षी कुमारी से. Actually, it's good to read, but at least सुनो कि क्लास में क्या हो रहा है ना. It's very good. आप रीडिंग कर रहे हो साथ साथ. I'm very happy for that. But बेटा unmute हो आप. So again that bird was relaxed. There is no need of worry. Still he is dependent on somebody else, तो कुछ भी नहीं होगा. But आप सुनना जरूर कि किसान फिर आगे क्या बोलता है. मतलब जब वो नेबर से मांगा हेल्प तभी बर्ड वरीड नहीं थी, है ना. जब वो कजन के पे डिपेंडेंट हुआ फार्मर कि यार मेरे कजन आएंगे मेरी हेल्प करेंगे, तभी बर्ड क्या थी, शी वाज रिलैक्स्ड, है ना. बट नेक्स्ट डे, व्हाई मदर यू सेड वी डिडंट नॉट हैव टू वरी. The next day. Mother, the farmer has decided to cut his corn by himself. तीसरे दिन जब वो चिड़िया आई, लाख आई, तो उसके बच्चों ने से कहा कि माँ, आज किसान बोल रहा था कि अब हम ये जो फसल है, ये जो मक्का है, ये खुद से हम लोग काट लेंगे. Come on my kids, it's time that we move somewhere else. अब चिड़िया बोली, अब हम लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए. तो बच्चे समझ नहीं पाए. उन्होंने चिड़िया से पूछा, माँ अभी तक तो आप हम लोगों को बोल रही थी कि there is no need of being worried, है ना. Now अब क्या हुआ? Why mother you said we didn't have to worry? My dear children, the bird answered, previously the farmer was depending on others' help, which was never sure to come. है ना. आप किसी काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो तो वहां से कोई श्योरिटी नहीं होती है ना. हो सकता है वो हो सकता है वो नहीं हो, है ना. बट if you have decided to do your work yourself, है ना, आप अपने आप ही डिसाइड कर लोगे कि now this is my time, this is my harvest, I have to reap it, I have to cut down, then that work shouldn't be uncertain, है ना. मदद के लिए हम दूसरों पे अगर आश्रित हैं तो वो काम कभी भी जरूरी नहीं है कि वो हो ही जाएगा, क्योंकि that depends on other persons, whether he wants to help us or not. But if we are dependent on ourselves, तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम अपने काम को कितनी जल्दी खत्म कर लेंगे. तो that time the bird realized कि now this is the time that we should move from here, क्योंकि अब ये जो फसल है वो पूरी तरह ये कट ही जाएगी और हमारा घोंसला भी टूट जाएगा. So he decided that he should move, और वो वहां से चले गए. This is the story. Okay, so now time इससे रिलेटेड जो भी I think whether कुछ questions हैं इसमें, exercise है. Could anyone tell me? Yes, ma'am. Okay, what is the exercise? Yes, What is the exercise? Yes. Ma'am, A61. A61. It's the correct answer. Yes, ma'am. I'm showing you. Okay, The let others. lark had made. अनिद्या, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो बेटा, बच्चे हैं सारे. प्रियेश और साक्षी. साक्षी कहाँ गई? साक्षी, प्रियेश अनम्यूट करो अपने आप को बेटा. The photo of this. प्रियेश रंजन,
सी अगर बहुत प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये एक्सरसाइज आप लोग खुद से कर लो, है ना. वी विल टॉक अबाउट टेंसेस. मैं टेंसेस वाला निकाल रही हूँ बिकॉज दिस विल बी क्वाइट इनफ फॉर द. So tenses are all about time and there are we used to read 3 types of tenses, है ना. 3 तरह के टेंस. सत्यम जा अनम्यूट करो अपने आप को बेटा. सत्यम Ma'am. Satyam, you want to say something? Yes, ma'am. What happened? क्या कहना है आपको बेटा? सत्यम क्या बोल रहे हैं? नो मैम. तो बेटा हैंड रेज मत करा करो. तो ये 3 तरह के टेंस होते हैं हमारे, है ना. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस इज ऑल अबाउट आवर प्रेजेंट, द टाइम विच इज राइट नाउ गोइंग ऑन. जो समय अभी हमारा बीत रहा है ना. जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग, दिस टाइम द टाइम इन विच वी आर हैविंग आवर इंग्लिश क्लास इज योर प्रेजेंट टेंस, है ना. फिर पास्ट यानी बीता हुआ समय, द टाइम विच इज ऑलरेडी गॉन, जो कल का टाइम था, है ना. नाउ कम्स फ्यूचर. ये है हमारा आज, ये है हमारा कल, बीता हुआ कल, और ये है हमारा आने वाला कल. दैट इज फ्यूचर. सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे ध्यान रखना होता है तो आपको ध्यान रखना होता है वर्ब के लिए. कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इसके, कुछ स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे मैंने अभी कहा तुम लोगों को, किसी के मोबाइल से शायद मेरी साउंड इको कर रही है, किसको जिस आप देख रहे हो आप म्यूट कर लो खुद को. आई थिंक सत्यम के पास से हो रही है. ओके सो देखो, मैंने कहा कि टेंस सबसे ज्यादा वो किसी को अफेक्ट करता है तो वो होता है वर्ब, है ना. तो वर्ब बेसिकली जो आप लोग देखते हो द एक्शन वर्ड, इसको हम लोग यहाँ लोग अगर सब लोग बोर्ड पे, आई डोंट नो वेदर इट्स डिस्कनेक्ट हो गई. डिस्कनेक्ट हो गए, वापस से कनेक्ट भी हो गए. तो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको हमेशा याद रखना पड़ता है. तो जैसे आपको ये याद रखना है कि टेंस 3 तरह के होते हैं और फिर हर एक टाइप ऑफ टेंस के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं. वो अभी नहीं इतने डिटेल में नहीं करेंगे, बट फिर भी याद बताती जाऊंगी. सबसे ज्यादा टेंस अगर किसी चीज को अफेक्ट करता है तो वो होता है वर्ब. बेसिकली अगर देखोगे ना तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टेंसेस में हमारे 5 फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है. V1, V2, V3, V4 एंड V5. V1 इज योर प्रेजेंट टेंस. ठीक है, जब कोई वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में होता है तो वो होता है हमारा प्रेजेंट. दैट इज प्रेजेंट. ठीक है. V2 जो ये होता है ये हमारा होता है. तो बेसिक फॉर्म होता है टेंस का. किसका? टेंस का, प्रेजेंट टेंस का बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे प्ले, ईट, ड्रिंक, डांस, these are the verbs, the action words. ना इसमें s लगा है, ना es लगा हुआ है, ना ed लगा हुआ है, ना ही इसका कोई और चीज है इसमें. V1 जो होता है वो हमारा सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज V2? V2 इज आवर पास्ट फॉर्म. पास्ट यानी जब क्रिया अपना रूप बदल लेते हैं बीते हुए समय के लिए. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा बेसिक फॉर्म है ईट, जो प्रेजेंट में हमने लिखा है ना, अगर एग्जाम्पल से समझोगे तो समझिए. ईट, ठीक है, ईट इज एन एक्शन वर्ड. पास्ट में ये बन जाता है एट, है ना. तो ये जो फॉर्म चेंज किया इसने, इसमें ये फॉर्म वर्ब का कहलाता है V2 फॉर्म. ठीक है. थर्ड फॉर्म जो होता है बच्चों, ये होता है हमारा पार्टिसिपल फॉर्म, है ना. इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म. याद रखो. अब यहाँ पे ईट, एट, ये हो गया ईटन, ईटन. ठीक है. ईट, एट, ये V3 फॉर्म है. व्हाट इज V4? V4 क्या होता है? कहीं कहीं पे आप देखते होगे ना,
playing, drinking, eating, writing, singing, dancing, मतलब हर एक वर्ड के लास्ट में ing लगा होता है ना? वो होता है हमारा V4 फॉर्म, ठीक है, V4 फॉर्म। तो जब हमारा यहाँ देखो, यहाँ लिख के मैं यहाँ लिख रही हूँ, V4 इक्वल टू V1 प्लस ing। जब वर्ब के बेसिक फॉर्म में, है ना, ओरिजिनल फॉर्म में ing लग जाता है तो वो हमारा है। और इसका एक और नाम भी होता है, वो नाम हम कहते हैं उसे जेरेंड फॉर्म, जेरेंड, GERUND। इसको हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको नाम प्रेजेंट, इसको पास्ट, इसको पार्टिसिपल